सनुल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बि'सा मस्वज़्ज़ालिमीन। We will cast terror into the hearts of those who have denied the truth, since they have associated others with Allah in His divinity, something for which He has sent down no sanction. The fire is their abode, how bad the resting place of the wrongdoers will be. अनकरीब हम काफरों के दिलों में रोब डाल देंगे, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ को शरीक ठहराया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी, और उनका ठिकाना आग है, और वो जालिमों का कितना बुरा ठिकाना है। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। Allah surely fulfilled His promise of succor when you were slaying them by His leave, until the moment when you flagged and quarreled among yourselves about the matter and acted against the order of the Prophet. Soon He showed you what you had intensely desired, for some among you sought this word and some of you sought the next. Thereupon, in order to put you at test, He turned you away from your foes. Still He pardoned you after that, for Allah is bounteous to those who believe. और बेशक अल्लाह ने तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया जब तुम उसके हुक्म से काफरों को कत्ल कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुमने बुज़दिली दिखाई और हुक्म में आपस में इख्तलाफ किया और तुमने उसके बाद नाफरमानी की। जब अल्लाह तुम्हें वो कामयाबी दिखा चुका था जो तुम्हें पसंद थी, तुम में कोई दुनिया का तलबगार है और तुम में कोई आखरत का तलबगार है, फिर उसने तुम्हारा मुँह उनसे फेर दिया ताकि तुम्हें आजमाए, और बेशक उसने तुम्हें माफ़ फरमा दिया है, और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फ़ज़ल फरमाने वाला है। इज़ तुसीदून वला तलवूना अला अहदिन वरसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन लिकैला तहज़नू अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। Recall when you were fleeing without casting even a side glance at everyone, and the messenger was calling out to you from the rear. Then Allah requited you by inflicting grief after grief upon you, so as to instruct you neither to grieve for the losses you might suffer nor for the afflictions that might befall you. Allah knows all that you do. जब तुम मुंह उठाए चले जा रहे थे और किसी को पीछे मुड़कर भी ना देखते थे, और तुम्हारे पीछे रह जाने वाली दूसरी जमात में हमारे रसूल तुम्हें पुकार रहे थे, तो अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले गम दिया और माफ़ी इसलिए सुना दी ताकि जो तुम्हारे हाथ से निकल गया ना तो उस पर गम करो और ना ही उस तकलीफ़ पर जो तुम्हें पहुंची है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से खबरदार है। ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مزاجئهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर।
Then, after inflicting this grief, he sent down an inner peace upon you, a sleep which overtook some of you, those who were concerned merely about themselves, entertaining false notions about Allah. The notions of the age of ignorance asked, have we any say in the matter? Tell them, truly all power of decision rests solely with Allah. Indeed, they conceal in their hearts what they would not reveal to you, saying, if we had any power of decision, we should not have been slain here. Say, even if you had been in your houses, those for whom slaying had been appointed would have gone forth to the places where they were to be slain, and all this happened so that Allah might test your secret thoughts and purge your hearts of all impurities. Allah knows well what is in the breast of men. फिर इसने तुम पर गम के बाद चैन की नींद उतारी जो तुम में से एक गिरोह पर छा गई, और एक गिरोह वो था जिसे अपनी जान की फ़िक्र पड़ी हुई थी। वो अल्लाह पर नाहक गुमान करते थे। जाहलियत कैसे गुमान? वो कह रहे थे कि क्या इस मामले में कुछ हमारा भी इख्तियार है? तुम फरमा दो कि इख्तियार तो सारा अल्लाह ही का है। ये अपने दिलों में वो बातें छुपा कर रखते हैं जो आप पर ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं, अगर हमें भी इस मामले में कुछ इख्तियार होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। ए हबीब, तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते, जब भी जिनका मारा जाना लिखा जा चुका था, वो अपनी कत्ल गाहों की तरफ निकल कर आ जाते, और इसलिए हुआ कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात आजमाए, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में पोशीदा है इसे खोल कर रख दे, और अल्लाह दिलों की बात जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअदि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। Surely those of them who turned their backs on the day when the two armies met at Uhud did so because Satan made them sleep because of some of their lapses. But Allah has pardoned them. He is all forgiving, all forbearing. बेशक तुम में से वो लोग जो उस दिन भाग गए जिस दिन दोनों फ़ौजों का मुकाबला हुआ, उन्हें शैतान ही ने उनके बाज़ आमाल की वजह से लग़ज़िश में मुब्तला किया, और बेशक अल्लाह ने उन्हें माफ़ फरमा दिया है। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा हलम वाला है।